Welcome to the first lecture in the subject structure analysis. Okay, so this is the first lecture for the subject. Okay, so let's talk about the syllabus first. Okay, so if you see this, this is a professional course. Okay, PCC for civil engineering, and the code is 208. The subject have 3 lectures and 1 tutorial per week, and it do not have any practicals. The subject is of 4 credits, which means that it have 1 credit extra than other subject. So this subject can be considered as more valuable and more important than other subjects. Okay, now let's talk about the syllabus. What is your syllabus? So the subject do not have modules, do not have defined modules. मॉड्यूल्स में आपका सिलेबस नहीं दिया गया है, rather it is more based on topics. Okay, so the syllabus talks about the analysis of indeterminate structures by force method, then flexibility coefficient and energy method. Okay, and all these methods should be applied for civil engineering structures. Okay, and then other methods for extension of energy method is principle of minimum potential energy, principle of virtual work, Castigliano theorem, reciprocal theorem, unit load method. This is all about energy method only. This is all energy methods. After that you have influence line diagram and rolling loads. ओके, क्या होता है ये सब, ये हम समझेंगे धीरे धीरे. देन इसी का कंटिन्यूएशन है मलर ब्रेसलो, देन उसकी application to both type of structures, determinate and indeterminate structure. Then the subject also talks about the analysis of beams and frame. Okay, तो beams और frame को एनालाइज करने के लिए हमें कौन से मेथड पढ़ने हैं, तो मोमेंट एरिया मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, 3 मोमेंट इक्वेशंस, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. ओके, ये कुछ मेथड हमें पढ़ना है. फिर कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, सिमेट्री का यूज़, एंड सिमेट्री, स्वे करेक्शंस. ओके, देन कुछ अलग टाइप के मेथड हैं, लेटरल लोड मेथड, जो बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेट तरह के मेथड हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं देते हैं. तो इनके लिए जो मेथड है, पोर्टर मेथड, कैंटिलीवर मेथड. ओके, देन लास्ट it have matrix method of structure analysis, which have displacement and stiffness methods. Then what are the textbook that is suggested by the syllabus? Okay, so the syllabus have listed 3 books for you. So the first book is C.S. Reddy,
then R.C. Hibbeler, then C.K. Wong. Out of these three books, I will recommend student to use this book. This book is very good. It have a good pictorial representation of the questions, and the concepts are well explained, and the standard of the questions are also good. Okay. Apart from this, student may use other books also. So I will say that B.C. Punamiya is also very good book. Okay. And the title for the book is Structure Analysis. Okay. B.C. Punamiya is the name of author. Then another book that I will suggest for a student is S.S. Ramamrutham. The title of the book is again Structure Analysis. Okay, so you may buy any book from these, but if I have to give suggestion, so Hibbeler is a good book. Ramamrutham is also very good book. Then I will say B.C. Punamiya. And but all are very good books. You may opt any book. Okay. So this is all about the syllabus and the textbooks that a student may take for a better understanding of the subject. Now let's talk about the subject now. Okay, so let me change the page. Okay, तो क्या है मतलब इस सब्जेक्ट का, क्यों आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं? तो अगर आप सब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर एनालिसिस. सो जैसे नाम में ही सब कुछ क्लियर कट है. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर? Okay, so structure means any form of building or any other component जो कि लोड ट्रांसफ़र करे, है ना, उसको आप स्ट्रक्चर बोलते हैं. स्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब है बीम, है ना, कॉलम, देन it can be frames, then it can be truss. तो ये मतलब है आपका स्ट्रक्चर का. देन जो आपका दूसरा वर्ड है एनालिसिस. एनालिसिस का क्या मतलब है? एनालिसिस का बेसिक मीनिंग क्या है? कि आप एनालाइज करें या कैलकुलेट कर पाएँ फोर्सेस, या फिर आप उनका इफ़ेक्ट बोल सकते हैं. फोर्सेस या फिर उनका इफ़ेक्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिए देयर इफ़ेक्ट. इफ़ेक्ट का क्या मतलब है? जैसे कि स्ट्रेस, है ना. सो तो आपका एनालिसिस का मतलब है कि आप फोर्सेस को कैलकुलेट करें, है ना. कौन सी फोर्सेस को? जो स्ट्रक्चर में फ्लो हो रही है ना.
तो बेसिक फंडामेंटल आइडिया जो सब्जेक्ट का है या सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, आपको स्ट्रक्चर के अंदर फ्लो होने वाली फोर्सेस को कैलकुलेट करना है कि वो फोर्सेस की वैल्यू कितनी है ना। या फिर आप उनके इफ़ेक्ट की बात करें, इफ़ेक्ट क्या मतलब है कि फोर्स का इफ़ेक्ट क्या है। तो जनरली स्ट्रेस एक इफ़ेक्ट है, स्ट्रेन दूसरा इफ़ेक्ट हो सकता है, बट जनरली हम स्ट्रेस की बात करते हैं। तो यहाँ भी हमें वही करना है कि हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंट स्ट्रक्चर में फोर्सेस। नाउ क्वेश्चन ये उठाया जा सकता है कि क्यों हमें कैलकुलेट करना है या क्यों हम एनालाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स, है ना। वाई वी एनालाइज एनी स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की ज़रूरत क्यों है। ओके, दिस कैन बी अ क्वेश्चन फॉर यू। ऐसा दिमाग में सवाल आना चाहिए। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि किसी भी एक स्ट्रक्चर या एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, है ना, आपको किन स्टेप्स के थ्रू गुज़रना पड़ेगा। इसको इस तरीके से आप समझिए कि एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है। लेट अस से आपको एक हाउस बनाना है ना। अगर आपको एक हाउस की बिल्डिंग बनानी है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये समझना पड़ेगा कि एक घर किन चीज़ों से बनता है। तो एक घर को बनाने के लिए आपको बीम्स की ज़रूरत है, कॉलम्स की ज़रूरत है, फाउंडेशन की ज़रूरत है ना, रूफ़ की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है ना। किन की ज़रूरत है, लेट मी लिस्ट हियर। लेट अस से आपको ज़रूरत है बीम्स की, लेट अस से आपको ज़रूरत है कॉलम्स की, ठीक है। आपको ज़रूरत है रूफ्स की, है ना। आपको ज़रूरत है डोर की, मान लीजिए आपको ज़रूरत है छज्जा की, है ना, छज्जास की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल की तरह समझना चाहते हैं। तो अगर आपको ये सारे चीज़ों को बनाना है या कंस्ट्रक्ट करना है तो इनको बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरत है। आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों की शेप क्या होगी, इनकी लेंथ क्या होगी। लेंथ आई विल से डायमेंशन की लिख देते हैं। डायमेंशन क्या होगी इन सब चीज़ों की, है ना। मतलब कि लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, या अगर सर्कुलर सेक्शन है तो रेडियस क्या होगी, है ना। आपको शेप की ज़रूरत है, आपको डायमेंशन की ज़रूरत है, फिर आपको मटेरियल की भी ज़रूरत है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ओके हमारा लेट अस से बीम की डायमेंशन ये है, उसकी लेंथ इतनी होगी, इतनी विड्थ होगी, इतनी हाइट होगी। जब ये आप डिसाइड कर रहे हो तो उसके बाद फिर आपको मटेरियल भी चाहिए उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, आपको मटेरियल की ज़रूरत है। नाउ द इशू इज़ कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, देन उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है।
मटेरियल आप कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल बीम में आपको किस तरीके का कंक्रीट चाहिए, M25 एम मटेरियल के। जैसे आप बात करें कि जो कंक्रीट आपका होता है, मान लो M20 होता है, M25 होता है या M30, जैसे जिस भी कंक्रीट की आपको ज़रूरत है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल आंसर है इसका कि आपको पता होना चाहिए कि बीम पे कितना लोड आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बीम पे लेट अस से 10 किलो न्यूटन का लोड आता है, तो आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना है जो 10 किलो न्यूटन को बियर कर ले, है ना। या फिर इसको मैं ज़्यादा बेहतर है, इसको लेट अस से MPa में लिख दूँ, मेगा पास्कल में लिख दूँ, है ना, स्ट्रेस के फॉर्म में लिख दूँ कि 10 मेगा पास्कल आपको बियर करना है। आपका मटेरियल इस तरीके का होना चाहिए कि उस पर जब इतना लोड आए तो वो आसानी से उसको बियर कर पाए। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, आपने लोड कैलकुलेट किया तब जाके आप डिसाइड कर पाएंगे कि ओके M20 जो आपका मटेरियल है ये इस लोड को बहुत आसानी से बियर कर सकता है। अगर आप M30 यूज़ करेंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप यूज़ M30 भी कर सकते हैं, लेकिन कम स्ट्रेंथ का मटेरियल भी इस लोड को बहुत आसानी से बियर कर सकता है। ओके, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बात क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि असल में आपको ये लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, ये लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बेसिक कहने का मतलब है कि बीम्स अगर आप बनाना चाह रहे हो तो बीम्स में which point of beam have what value of stress। आप इस तरीके से समझिए, लेटर से ये एक बीम है, अगर इस एक पॉइंट पे, लेटर से ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक स्ट्रेस आ रहा है, मान लो 10 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेस आ रहा है। लेटर से इस पॉइंट पे आ रहा है 20 न्यूटन पर mm²। नाउ अब आपको जब ये चीज़ पता होगी तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे, है ना, कि आपको पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे ये वैल्यू कितनी है। कहने का मतलब पहले आपको ये 10 वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब जाके आप मटेरियल की बात कर पाएंगे, है ना। तो सिंपल मीनिंग है कि ये 10 को कैलकुलेट करना, ओके, इस 10 को कैलकुलेट करने को ही क्या कहा जाता है, इस 10 को कैलकुलेट करने को ही क्या कहा जाता है, एनालाइज करना या एनालिसिस करना, टू कैलकुलेट दी फोर्सेस। तो पूरे सब्जेक्ट में आप सिर्फ यही एक काम कर रहे होंगे कि आप फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे होंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे, आप स्ट्रक्चर में, कि इस पॉइंट पे इतनी फोर्स है, इस पॉइंट पे इतनी फोर्स है। सब्जेक्ट का बेसिक मीनिंग यही है कि आपका काम है फोर्स को
कैलकुलेट करना। क्योंकि अगर आप फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे तभी जाके आप सही मटेरियल चूज़ कर पाएंगे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ओके, जब एक बार मटेरियल सिलेक्ट हो जाएगा, है ना, तब आप उनकी डायमेंशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। ओके, तो उनकी डायमेंशन कैलकुलेट करना और मटेरियल डिसाइड करना कि कौन सा मटेरियल होगा, ऐसी चीज़ों को कहा जाता है डिज़ाइन करना। डिज़ाइन का क्या मतलब है? डिज़ाइन का मतलब है टू कैलकुलेट डायमेंशंस, किसी भी बीम, कॉलम या जो भी चीज़ें हैं, इनकी डायमेंशन को कैलकुलेट करना और डायमेंशन के साथ मटेरियल भी, कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ करने वाले हैं, है ना, इस चीज़ को आप डिज़ाइन बोलते हैं। और एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस का मतलब क्या है? टू कैलकुलेट फोर्सेस। ओके, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। बेसिक मीनिंग आपका यही है। तो आप थोड़ा अगर अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को देखेंगे तो आपको शुरुआत में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, ताकि आप समझ पाएँ कि मटेरियल जो है आपका उसकी क्या प्रॉपर्टी है, आप मटेरियल को समझ पाएँ। साथ में आपको पढ़ाया जाता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, ताकि इस मटेरियल पे लगने वाली आप फोर्सेस को कैलकुलेट करना सीखें, है ना, आप उनको कैलकुलेट करना सीखें। जब आप इन फोर्सेस को कैलकुलेट करना सीख लेंगे तब आपको डिज़ाइन के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि आरसीसी या स्टील स्ट्रक्चर्स, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, या आपके आगे के सेमेस्टर्स में आएंगे। तो आपका बेसिक जो करिकुलम बनाया गया है ये इस तरीके से बनाया गया है कि पहले आप एनालाइज करना सीखें, पहले आप एनालिसिस सीखें, बाद में आप चीज़ों को डिज़ाइन कर पाएँ। सारे कोर्सेज इसी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं या इसी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी सेम तरीके का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि पहले वो चीज़ों को समझते हैं, फिर उन्हें एनालाइज करते हैं, फिर उन्हें डिज़ाइन करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स भी इसी तरीके का चीज़ यूज़ करते हैं। पहले वो चीज़ों को, मटेरियल को समझते हैं, मटेरियल्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर वो एनालिसिस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, देन लास्ट में जो फाइनल सेमेस्टर जब वो पहुंचते हैं या फाइनल ईयर में पहुंचते हैं तब वो डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो सारे इंजीनियरिंग्स को इसी तरीके से बनाया गया है। ओके, सो ये रफ आइडिया है आपके सब्जेक्ट का। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग हियर कैन बी कि आप किसी भी स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज करें या कैसे फोर्सेस को कैलकुलेट करें, है ना। तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट forces inside a structural component। कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे।
या क्या क्या आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। तो सिंपल मैथमेटिक्स को आप समझें, जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब जाके आप उन चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए। सो जब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपका टारगेट है, तब जाके आप इस चीज़ का आंसर दे पाएंगे कि मैं कैसे कैलकुलेट करूं। ओके, सो इसलिए हम इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं और हम बात करते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट आर कंसीडरेबल forces to be calculated। अगर आपको एक बीम में कौन सी फोर्सेस को कैलकुलेट करना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या है कि पहला आपको उसके जो सबसे पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए सपोर्ट के रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। देन सेकंड क्या है, आपको उसकी इंटरनल फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। ओके, कि उसके अंदर फोर्स किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है ना। पहले तो उसके सपोर्ट के रिएक्शंस पता होना चाहिए। सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। देन सेकंड क्या है, उसकी इंटरनल फोर्सेस आपको पता होनी चाहिए। क्या है? इंटरनल फ्लो ऑफ फोर्सेस, कि अंदर उस स्ट्रक्चर के अंदर फोर्स किस तरीके से फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपका स्ट्रक्चर क्या है, बीम है, तो बीम्स में जो आपकी फोर्सेस हैं वो कौन सी हो सकती हैं। इंटरनल फोर्सेस हो सकती हैं आपकी शियर फोर्स। दूसरी आपकी क्या हो सकती है, बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं बीम में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अगर आपका स्ट्रक्चर लेटस से ट्रस है, तो दोबारा आप इसमें क्या इंटरनल फोर्सेस क्या हो सकती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हो सकती हैं एक्सियल फोर्सेस। ये सब क्या होता है ये हम धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल आप एक रफ आइडिया ले लेंगे कि ट्रसेस में क्या है, एक्सियल फोर्सेस। देन मान लीजिए शाफ्ट है, देन यहाँ पे आप टॉर्जन की बातें करते हैं, तो आप टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हो। देन फाउंडेशन है आपका, सॉरी फ्रेम की बात करते हैं। अगर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं शियर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की। क्यों ये सब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। फ़िलहाल आप ये समझें कि जो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी इम्पॉर्टेंट फोर्सेस हैं या कौन सी फोर्सेस हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। तो बीम्स में शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ट्रसेस में एक्सियल फोर्सेस,
शाफ्ट में टॉर्शन, फ्रेम्स में shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट फोर्सेस हैं जो आपको कैलकुलेट करनी चाहिए। तो चूँकि जब इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है कि कौन सी फोर्सेस हमें कैलकुलेट करना चाहिए, तो अब वापस से हम अपने सवाल पे आते हैं कि कैसे हम इन फोर्सेस को कैलकुलेट करें, या कैसे shear फोर्स बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करें, कैसे हम एक्सियल फोर्सेस को कैलकुलेट करें, कैसे टॉर्शन और अगेन shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करें, ये हम कैसे कर पाएंगे। तो आप बहुत ही मैथमेटिकल आंसर है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे कि स्ट्रक्चर्स, जो आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते होंगे तो इक्वेशन में क्या होता है, 3 अननोन होते हैं। तो आपको ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब है अगर इस तरीके का कोई इक्वेशन है, लेट अस से, तो अगर आपको x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। रफली कुछ भी हम इमेजिनरी इक्वेशन लिख देते हैं। लेट अस से ये कोई दूसरा इक्वेशन, ऐसे ही कोई तीसरा इक्वेशन है ना, y + 10z। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ अ गुड इक्वेशन और नॉट। लेट अस से ये इस तरीके से इक्वेशन है। तो अगर आपको x, y, z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको 3 इक्वेशन की ज़रूरत होगी। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि अगर आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपका टारगेट जब डिसाइड है कि हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं, तो आपको उतने इक्वेशंस फ्रेम करने पड़ेंगे, उतने मैथमेटिकल इक्वेशन फ्रेम करने पड़ेंगे, तब जाके आप चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो आंसर क्या हो सकता है इसका? बहुत ही सिंपल आंसर है। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? सो बाय यूजिंग mathematical equations. Okay. Now again, जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो अगेन आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके अननोन्स जितने होंगे आपको उतने ही इक्वेशन उसको सॉल्व करने के लिए फ्रेम करने पड़े, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतने इक्वेशंस फ्रेम करने पड़ेंगे, उतने इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। इसको एक अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ, या फिर आप इस तरीके से समझ ले। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। What can be approach to frame mathematical equation? आपको कौन से मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने चाहिए इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के? ओके, कौन कौन से इक्वेशन बनाने चाहिए, या आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है?
तो हमारे पास आंसर, इसका आंसर बेसिकली सिंपल फिज़िक्स में इसका आंसर है कि आप चीज़ों को कैसे इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो जो आपका न्यूटन्स का जो लॉ है, दैट एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। ओके, तो पहला जो आपका क्या है, न्यूटन्स लॉ। ओके, न्यूटन्स लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैव equal and opposite reactions. ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस चीज़ को मैथमेटिकली लिखना चाहें, ओके, इसी चीज़ को आप मैथमेटिकली लिखना चाहें, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्शन है, ओके, और आपका जो रिएक्शन है वो क्या होगा, इक्वल होगा बट ऑपोजिट होगा। ओके, ऑपोजिट का मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपका एक्शन पॉजिटिव है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, और ये दोनों का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब कहने का मतलब है एक्शन और रिएक्शन बराबर होंगे, है ना। बेसिक मतलब क्या है, एक्शन बराबर होगा रिएक्शन के। ऑपोजिट मतलब साइन की बात कर रहे हैं ना। आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाई, आपने ये लगाई इस डायरेक्शन में, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक्स डायरेक्शन में हैं। तो अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज 0, क्योंकि दोनों बराबर हैं, एक्शन और रिएक्शन बराबर। देन सिमिलरली आप अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्शन लगाएं, ठीक है, तो रिएक्शन कैसा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, इसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज 0, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में सम क्या है, 0 है। देन सिमिलरली अगर आप मोमेंट की बात करें कि अगर आपका एक एक्शन मोमेंट, अगर आप एक्शन लगा रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगा, बराबर होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन का होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि समेशन ऑफ मोमेंट किसी एक पॉइंट P पे, उसका समेशन क्या है, 0 है। ओके, इन 3 मैथमेटिकल इक्वेशंस को आप क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहा करते हैं। ओके, नाउ ये जो 3 इक्वेशन हैं, ये 3 इक्वेशन बेसिकली 2 डायमेंशन के लिए है। कि जब आप एक पेपर पे फोर्सेस की बात कर रहे हो तब ये 3 इक्वेशन
इक्विलिब्रियम के इक्वेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी 3 इक्वेशन होते हैं। समेशन ऑफ फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ मोमेंट लेट अस से ये एक्स वाई एक कोई मोमेंट था, या फिर मैं एक इसको और सिंपल फॉर्म में लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं कि मोमेंट इन एक्स, ओके, देन मोमेंट इन वाई, देन मोमेंट इन जेड इज 0। तो अगर आप इन 6 इक्वेशन की बात करोगे तो ये 6 इक्वेशन 3 डायमेंशन के लिए वैलिड है ना। बट जनरली जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है या जो बीटेक का कोर्स है, इसमें हम इन्हीं 3 इक्वेशन की बात करते हैं, 2 डायमेंशन की बात करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। आपको ज़रूरत नहीं है 3 डायमेंशन तक एनालाइज करने की। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें फोर्सेस जो होती हैं वो जनरली जो ज़्यादा डोमिनेंट फोर्स होती है वो कौन सी होती है? वर्टिकल फोर्स ज़्यादा डोमिनेंट होती है। और दूसरे जो 2 फोर्सेस हैं, मतलब कहने का मतलब है अगर वर्टिकल आप जेड को मानते हो तो एक्स और वाई डायरेक्शन की फोर्सेस कम होती हैं, बहुत नेग्लिजिबल होती हैं एज़ कंपेयर टू वाई। तो आप जो नेग्लिजिबल फोर्सेस हैं एक्स और वाई, उसमें से आपको एक फोर्स अडॉप्ट कर लो और फिर आप आसानी से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें ज़्यादा जो आप आंसर कैलकुलेट करेंगे वो ज़्यादा गलत आंसर नहीं होगा। इसलिए 2 डायमेंशन इज़ सफिशिएंट टू एनालाइज, हालांकि बेसिकली 3 डायमेंशन में होती है। तो ये हमारी पहली अप्रोच है सॉल्व करने के लिए। कि पहली अप्रोच क्या है? न्यूटन्स लॉ, जो बेसिकली क्या होगा, इक्विलिब्रियम यूज़ कर रहा होगा। ये पहला तरीका है। देन आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। ओके, पहला तरीका क्या है आपका? आप देखेंगे पहला तरीका क्या है आपका? इक्विलिब्रियम, जो बेसिकली न्यूटन्स लॉ से आया है। ओके, तो पहला तरीका है कि आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करें, है ना। इन 3 इक्वेशंस का यूज़ करें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर आपका? कि आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस का यूज़ करें। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का मतलब क्या है? कि अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई करी, ओके, लेट अस से आपने क्या किया? अप्लाई फोर्स, कोई फोर्स अप्लाई करी, लेकिन आपको एक चीज़ पता है। वो क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट कंडीशन। डिस्प्लेसमेंट कंडीशन आपको पता है, ये चीज़ आपको नोन है। तो इस नोन कंडीशन को ही क्या कहते हैं आप? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन की तरह डिफाइंड नहीं है, कि ऐसा नहीं कि हर बार आप यही 3 इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, है ना। कंपैटिबिलिटी में ऐसा फिक्स नहीं है। ये स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आता है कि ओके, दिस इज़ द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि ये एक दीवार है और यहाँ पे आपने एक बॉक्स रखा है और इस पे आप कोई फोर्स लगा रहे हैं,
चूँकि आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ओके, तो आपको पता है कि ये जो ब्लॉक है, ये जो इसमें जो इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट आप देखेंगे तो वो कितनी है, 0 होगी, वो अपनी जगह पे ही बॉक्स रहे। तो डेल्टा x इज इक्वल टू 0 क्या है, एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। लेट अस से यही कंडीशन क्या होता, ये ऐसा एक कंडीशन होता कि बॉक्स आपका यहाँ पे है, आपने एक फोर्स F लगाई और ये जो है लेट अस से ये 5 mm है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 5 mm, ये क्या है, एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन है या कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन की तरह फिक्स नहीं है, ये हर बार चेंज होता है। तो आपको बस स्ट्रक्चर को देख के पता करना होगा कि ओके इस चीज़ में ये कंपैटिबिलिटी कंडीशन है। ओके, इक्विलिब्रियम इक्वेशन में क्या था कि ये इक्वेशन फिक्स है कि हर बार यही इक्वेशन होंगे चाहे कैसी भी कंडीशन। ओके, सो दिस इज़ द आइडिया कि आप दो अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। पहला क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच क्या है, आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको थोड़ा यूज़फुल लगा होगा। आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेगमेंट। थैंक यू।